Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. Okay, family business. This is my 25th year of consulting in family businesses. So I've been doing this for 25 years, and every year I learn more because as I practice, there is a learning that happens each year. And they say it has to go from generations to generations. But if it has to go from generation to generation, अगर एक generation से दूसरे generation में जाना है, it is a really challenging journey. In management, they say that a caterpillar becoming a butterfly is a process and we should do it, but we forget that in that process, the caterpillar has to sign up something. He has to go blind and he has to die. Then only a butterfly can emerge. So it's a good concept to have, but similarly, in generation to generation, we have to look at what is good that we need to retain and what needs to change and how we are going to go ahead. By the way, you can take notes. If you want to take photographs, at the end of the slide, last slide, there is a QR code, you can download it. So you can relax on that. But definitely take notes. And this is a common thing that everybody says that you have to pass on the baton. It is very easy to say, but what exactly you have to do, you don't know. And consultant like me who will come and tell you that in every country there is some kind of code. In US they say shirt sleeve to shirt sleeve in 3 generations. In India they say koti ki umr 60 saal. In Mexico they say father merchant, son playboy, grandson beggar. In China they say fortune never survives 3 generations. In Germany they say the first generation creates it, second generation inherits it, the third generation destroys it. And in Italy, they say from stables to start and back to stables in 3 generations. And this makes us believe that family business is going to die in 3 generations. There is inevitable death that is going to happen. But is it so? Because this, everything that we are talking, there are certain businesses which have still survived and have grown where it is the 5th generation, 7th generation, 10th generation carrying on, and the oldest family business, that is a hotel in Japan, I think it is in 56th or 52nd generation. So it started in 700 and something, but that's a different story because Japan is an exception where you have to either आपके जो बड़ा वाला लड़का है, he takes over the business, या उस लड़की है तो जमाई टेक्स ओवर द बिजनेस. देयर इज अ क्लियर रूल देयर, सो दैट इज व्हाई इट इज इजी. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड देयर इसमें रिसर्च भी है एंड दे से दैट वी हैव डन रिसर्च और इतने कंपनियों का हमने देखा है, तो इट्स अ मिथ. Actually, family business does not last beyond generation 3 is a myth because this was based on a 1980 study of manufacturing unit in some state in United States. The researcher took 30 years as a generation, and most of the 1/3 make it through the second generation. मतलब 60 साल तो सब कंपनियां are alive and they were working. If you see the publicly listed company in US, the average life cycle has come down to 15 years. So we are much better. As family business, we think of long term. If you go through the current record, it is 20. It was 30 years, it has come down to 20, and now the current practice is saying that average life cycle of any company is 15 years. So in that context, family business is much, much better. There are many brands which are family companies, and they are growing, surviving, and thriving. So it's a myth. First thing is that whenever I start to talk, I always ask who are the people from third generation because they are in most tension. Because they are the ones who are the culprits and everybody is trying to blame them. कि अभी तो तू बंद करने वाला है. But we don't realize कोई business same principle, same business model पे चलता नहीं है. Principal values will be same. But business करने का तरीका बदल जाता है और वो हर समय इवॉल्व हो रहा है.
And if you look at it today, in last 15 years, the landscape has completely changed. When I talk to retailers, they say कि e-commerce बंद होना चाहिए, without forgetting कि मेरे घर में ही रोज बॉक्स आ रहे हो या घर से ही रोज बॉक्स जा रहे हैं, तो मेरे घर में ही अगर e-commerce चल रहा है तो मैं दूसरे बंद कैसे कर सकता हूँ? So that is the reality of life. In family business, we create three types of wealth. We only talk about business, but we create intellectual wealth. What is intellectual wealth? You built in some practices, processes. आपके पास कोई people है, लोग हैं जिनको वो मालूम है कैसे काम करना है. They are specialized people that you have. You have knowledge which is specialized. That's why people are paying you. So you create an intellectual wealth. That is also a wealth of a sort. Then you create a social wealth. आप जब भी फैमिली बिजनेस बनाते हो और बिजनेस ग्रो होता है, आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, तो यू आर हेल्पिंग द लोकल इकोनॉमी. You are creating a social wealth. You are creating a reputation for you. You are creating as a company a credibility, or as a family a credibility for your family. We forget about the social wealth. I'll give you an example. I was working with a client and they were into diamond manufacturing. They had, I think at that point of time, 2,000 people, 1,800 or 2,000 people. और जब भी 5:30 बजे कंपनी छूटता था, कंपनी के बाहर मार्केट लगता था आधा घंटे के लिए. Because at any given point of time, 1,800 लोग कहाँ मिलेंगे आपको? So vegetable vendors, all those grain merchants, everybody used to have their thela in that short span of 1 hour. So we are contributing to the local economy. आप कोई सोशल वर्क मत करो, पर अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और आप प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हो, तो इससे अलावा कोई अच्छा सोशल वर्क नहीं हो सकता. I think that is the best social work any company can do. Because if you are doing a profitable business which is more than, and the profit is more than inflation, then you are doing justice to the capital. And if you are creating employment, you are doing service to the local economy. I think इससे बड़ा अच्छा काम नहीं हो सकता जो कोई भी कंपनी कर सकती है, और वो हम कर रहे हैं. We are doing it from generations. We should be proud of it. And third is financial. Financial wealth में there is business wealth, there is family wealth, and there is personal wealth. We don't distinguish ourselves from business. So सब जो है business ही देखते हैं हम. There is family wealth also, क्योंकि joint में कुछ आपकी assets रहती है, पैसा रहता है, and there is personal wealth also. When you grow from generation to generation, you have to understand that these are the changes that are happening. अगर ये change आप देख नहीं पाओगे, तो आप फैमिली बिजनेस को एज अ बिजनेस, एज अ फैमिली डिस्टिंग्विशली अलग नहीं देख पाओगे. एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज नॉट फैमिली बिजनेस. द प्रॉब्लम इज टू फोल्ड. वन, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड सेकंड, वी आर प्लेइंग मल्टीपल रोल्स एट डिफरेंट लोकेशंस. एंड मैनेजिंग दैट इज अ रियल टास्क, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. आप घर में पापा हो और ऑफिस में बॉस हो. इट इज नॉट ईजी. आप घर में भाई हो और ऑफिस में बॉस हो, या ऑफिस में कलीग हो. इट इज नॉट इजी. यू आर मैनेजिंग मल्टीपल रिलेशनशिप. इट इज डिफिकल्ट, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. दैट्स वेयर यू थ्राइव एंड यू थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म. सो इफ यू लुक एट इट, बिजनेस, देयर आर 4 ऑपरेटिंग रूम्स दैट वी ऑपरेट फ्रॉम. एंड विच आर दोज रूम्स? देयर इज अ ओनर रूम. देयर आर ओनर्स. आपकी बीवी शायद बिजनेस में काम नहीं करती होगी, लेकिन उसके पास शेयर तो है, या वो पार्टनर है कंपनी में. आपकी बेटी शायद पार्टनर है, या शायद उसके पास शेयर है, बट वो बिजनेस में तो नहीं काम करती. सो देयर आर बेनिफिशियरीज एंड ट्रस्टीज इन ओनर रूम. उनको भी कोई राइट्स है. आपकी कंपनी जब भी 10 करोड़ की होगी तो कोई पूछता नहीं है. आपकी कंपनी जब भी 1,000 करोड़ की होती है, 5,000 करोड़ की होती है, तो शेयर को वैल्यू लगती है. एंड देन यू हैव राइट्स. सो दे आर ट्रस्टीज, दे आर बेनिफिशियरीज, दे आर ओनर्स who have invested their money in your business. Then there is a board room where you have directors, where you have advisors. And believe me, this is the most neglected room, क्योंकि board room में board of director का काम क्या होता है, ये many of us does not know. We feel that business means to operate. But as a board, and board of director is a designation. If you have it on card, you will get value. But what is the role of a director? A director of a listed company or a bigger company, does he go on giving all instructions? Does he operate at the plant? Does he sign 500 rupees voucher?
So as a director, do we do this? If we are doing this, then are we doing justice if we are director? Third is there is a management room. There is a CEO, management, there are employees who are actively running the show. Directors will create a strategy, will set a direction. Management room will have to execute it. They will sanction the resources, but for that the company has to grow to a certain level, then only that happens. Initially, we play both the roles, and when we play both the roles, we intermingle in all those roles, and when we reach, जब भी हम वो मुकाम पे आ जाते हैं, it becomes very difficult to separate, and it is very important that we separate it. And fourth is family room. Family room में there are dependents, there are spouses, there are next generation, you are there, cousins are there, everyone is there, and everybody is working in the business. Because when a founder जब business चालू करता है तो फ्री का लेबर कहाँ मिलता है? घर में आ जाओ भाई, क्योंकि वो ट्रस्टेड है, चोरी नहीं करेगा, घर में, और किया भी तो घर में ही जाएगा, किधर बाहर नहीं जाएगा. वी विल नो. सो आई थिंक फैमिली रूम इज समथिंग वेयर एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बिजनेस. आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है, आपके बीबी को लगेगा ये साल में डायमंड का हार आएगा, या शायद हम यूरोप टूर करने जाएंगे, या मेरा घर रिनोवेट हो सकता है. आपकी बेटी को लगता है कि शायद मैं फॉरेन एजुकेशन में जा सकती हूँ. सो एवरीबडी हैज, इनडायरेक्टली एवरीबडी हैज एक्सपेक्टेशंस. द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू सी वी हैव इजी एक्सेस एवरीवेयर, एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि हमको लगता है हम किधर भी जाके बैठ सकते हैं और किधर भी जाके कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी हैव अ राइट टू डू इट बिकॉज वी आर फैमिली. बट व्हेन यू ग्रो, I think that becomes the most dangerous thing in a family business. क्योंकि आपके नीचे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको मालूम नहीं किस, उसके लिए तो सब बॉस है, किसका सुनना है, क्या करना है. It creates chaos. That's why it is important that we separate out these rooms and have clear-cut understanding what everybody is expected to do. Ownership has role. Ownership स्मॉलर कंपनीज, शेयर ओनरशिप आपका सीएस मैनेज करता है या सीए मैनेज करता है, बट एज द कंपनी ग्रोज लार्ज, ओनर्स हैव राइट्स. दे कैन अपॉइंट सीईओस, दे कैन फायर सीईओस, दे कैन अपॉइंट द रेम्यूनरेशन ऑफ टॉप पीपल, दे कैन अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट राइट्स. हम अगर लिस्टेड कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट में करते हैं तो हमको वो नोटिस आता है कि यू हैव राइट टू वोट. हम करते नहीं, वो बात अलग है, बट दे हैव अ राइट. इन योर फैमिली बिजनेस, इफ योर बिजनेस ग्रोज बिगर, ओनर्स हैव राइट. ओनर्स हैव राइट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन योर मोस्ट रिस्की वेंचर इन योर लाइफ. दे हैव राइट ऑफ रिवॉर्ड्स. सबका पैसा जाने के बाद में उनको पैसा चाहिए, रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टेड मनी. सो दे हैव अ रिवॉर्ड. ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगा? Many times we are not very clear when multi-generations are working in the business. The next generation does not know ये business का share मेरे को आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, and these are all things which will create lot of confusion in them. शायद जी देंगे, नहीं देंगे, माता जी देंगे, नहीं देंगे, I don't know. And now consider a stage where I am 38, 40. मेरी शादी हुई है, मेरे को बच्चे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं. Still I am blind. And my father is 65, 68. He is still actively taking decisions. Still I am blind. I don't know. Is it something which is important for me to know? Because it creates a peace of mind. It is nothing beyond that. There is a rule for it. कैसे होगा? ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? बोर्ड रूम हैज स्ट्रेटेजिक प्लान्स. क्या डायरेक्शन लेना है? बिकॉज एवरी बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ चेंज. एवरी बिजनेस, द बिजनेस मॉडल चेंजेस every 5 years down the line. Today, I mean 20 years back we used to call long term plan means 5 साल का प्लान, 8 साल का प्लान. टुडे पीपल से 3 साल का भी मालूम होगा तुमको तो बहुत है, क्योंकि हमको ही मालूम नहीं 3 साल के बाद में क्या होने वाला है.
शायद आज मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं, एक साल अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है, वी हैव नो क्लू. सो स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, उसमें रिसोर्सेज अलोकेशन क्या करना है, एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ डिजायर्ड स्किल, बिकॉज एट एवरी स्केल 10 करोड़ का कंपनी चलाना है, 100 करोड़ का कंपनी चलाना है, 500 करोड़ का कंपनी चलाना है, 1500 करोड़ का कंपनी चलाना है और 5000 करोड़ का कंपनी चलाना है. हर कंपनी चलाने के लिए जो स्किल चाहिए वो अलग है. आप 1500 करोड़ या 5000 करोड़ का कंपनी 500 करोड़ या 50 करोड़ के हिसाब से चलाओगे, इट विल फेल. You will need different kind of skills. You will need different kind of abilities. In family business, we take pride being operators. That is necessity in the earlier generations. That is necessity when the business is small. When the business starts growing, you have to be wealth creators. आपको डायमेंशंस देखना पड़ेगा, नए चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, नए ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज देखने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेयर द रोल कम्स इन. if we don't, I mean, मेरे पिताजी ने गद्दी पे बैठ के कैश काउंटर संभाला है, मतलब वो वैसा ही बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि कैश देने वाला कस्टमर ही नहीं है मेरे पास आज, वो भी जीपे करता है. सो आई थिंक दैट हैज टू चेंज. अगर जीपे करता है तो आई हैव एवरी रीजन टू गो इन अ सिस्टमैटिक वे एंड ग्रो द बिजनेस, बिकॉज दैट इज वेयर द न्यू स्किल विल लाई फॉर. मैनेजमेंट रूम इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स किए वो एग्जीक्यूट कैसे होगी, उसको रिव्यू कैसे होगा, हु आर द राइट पीपल हु विल फॉलो इट अप, रूल्स रिवॉर्ड्स क्या होंगे, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स क्या होगा. कॉम्पनसेशन सैलरी फैमिली में इक्वल देना है कि अनइक्वल देना है, बिगेस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट. हमारे में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में देते थे, थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में पॉसिबल है. वी हैव टू रियली थिंक थ्रू. हमारे मल्टीपल बिजनेसेस है, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी है. कोई 100 करोड़ का धंधा चला रहा है, कोई 5000 करोड़ का धंधा चला रहा है, 3000 करोड़ का चला रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड. इट इज डिफरेंट, इट इज डिफिकल्ट. एमएनसी कंपनी में ये डिफिकल्टी होती नहीं, क्योंकि वो किसी सगाई वाला होता ही नहीं वहाँ, ना शेयर होल्डर का पाला मैनेजमेंट से पड़ता है, ना मैनेजमेंट का पाला शेयर होल्डर से डे टू डे में पड़ता है. एंड फैमिली इज द मोस्ट निगलेक्टेड एरिया इन एनी फैमिली बिजनेस. आफ्टर सेकंड जनरेशन you have to invest time, energy, efforts in making the family come together, bond together, work together, and enjoy together. If you don't do that, your family business will come into trouble. That is extremely important. Whenever we talk about family business, we only talk about business. कि मैनेजमेंट कौन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेगा, डायरेक्टर कौन हो सकता है, रेवेन्यू कौन ला सकता है, फाइनेंस कौन मैनेज करेगा, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. पैसे कितने मिलेंगे, गाड़ी कौन सी होगी, फॉरेन वेकेशन ले सकते हैं क्या, घूमने जा सकते हैं क्या. वी नेवर टॉक अबाउट फैमिली. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जैसे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में हुआ वैसे ही वो कैरी फॉरवर्ड होगा. बट वी फॉरगेट इन सेकंड जनरेशन you are raised under a very authoritative mother. In third generation, and you are staying together, and you have raised together, you have grown up together, you know each other well. आप झगड़ा भी करोगे सिबलिंग्स में तो भी खाना साथ में खाने की आप में ताकत है, which is not the case with third generation, because they are raised under different mother, maybe under different household. They are given values which may not be the same values that you were given in your generation, and they may not know each other's skills. How will you make them partners in future? Will you think that this partnership will work? Because मेरे को मालूम ही नहीं मेरा दूसरा पार्टनर की स्किल्स क्या है, वो उसको अच्छा क्या आता है, मेरे को अच्छा क्या आता है, हम कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर सकते हैं क्या. If I don't know it, then there is a problem. Family room is the most neglected room, and we have to plug this. If you feel that you have a right to sit here, how? Will you be an observer? Will you be a board member? Will you be the chairman? Will you be the managing director? What? Will you be the director? And then what role you are supposed to do? If that is not clear, then everybody will try to meddle there. And that is going to create problem for the family.
So this is where we need to really understand, and these are the real critical points of any family business. This is the basics of it. Now, if you look at succession, again we talk of only management succession, business कौन चलाएगा? But succession is also on a multi-level. There's a business leadership succession. For that, you have to understand what size of business that you are running, what scale of business that you are going to look at, and what kind of skill, acceptability, and adaptability that is required. There's a business ownership succession. आपके शेयर, मेरे पिताजी थे, उनको 2 बेटे थे, 50-50 हो गए. उनके 2 बेटों को, एक को 2 बेटे और एक को 4 बेटे. अभी क्या हो गया? 25, 25, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5. मेरे फैमिली में ये चलने वाला है. आर वी विलिंग टू डू दैट? इज इट एक्सेप्टेबल टू ऑल? क्योंकि पहले तो सब इक्वल. अगर इक्वल रखना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कैन 25 वाला इज रेडी टू डिसॉल्व? हाउ इट विल हैपन? एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी. 12.5, 12.5, 25 वाला एक है, वो बिजनेस में है ही नहीं. वो यूएस में बैठा है, वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट में, नासा में बैठा हुआ है, लेकिन उसका 25% है. He is least concerned about business. Does not attend anything, but he has 25% stake. And as in the first slide we have seen, he has every right as a share owner. And now your business goes to 2,000 crores. And suddenly he realizes that his share value has grown up to 1,000 crores. Now what? So there is a business ownership transfer. There's a family leadership transfer. And in family leadership, we need to understand what is the purpose of the family to being in the business. Why we are doing business together. It is extremely important question we seldom ask. हम पूछते ही नहीं, हम business क्यों कर रहे? Founder ने किया था, अभी हम तीसरे generation में क्यों कर रहे? Are we bringing strength? हमारी क्या inherent strength है जो business को बड़ा करने में मदद करेगी? और वो है नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? Then there are values. What values that will follow? As a business, ट्रांसपेरेंसी है तो वो ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है क्या? कम्युनिकेशन है तो वो कम्युनिकेशन बरकरार रह रहा है क्या? इफ दैट इज नॉट द केस, यू आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस. एंड फाइनली वेल्थ. हमारे पास रियल एस्टेट, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास घर है, हमारे पास जायदाद है, हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास दूसरे कंपनियों के शेयर है. एवरीथिंग इज वेल्थ. शायद वो कंपनी के नाम पे हो, वो पर्सनल नाम पे हो, वो जॉइंट नाम पे हो, बट इट इज देयर. हाउ इट इज गोइंग टू गेट succeeded in the next generation? So succession is not only business leadership. Succession is also all this dimension. And now you understand, with business growing, there are scale dimensions, growth के dimensions और challenges है. आप एक दूसरे से related भी हो, आपको काम भी करना है, आप owner भी हो, और यहाँ और भी dimension है. तो ये सब लफड़ों में how do you manage? That becomes a real challenging situation. And that is where it's a balancing act. We'll talk about business leadership because today it is extremely important that how we can get the next generation in our business. Because हमारे जो business, जो प्रकार से हम काम कर रहे हैं, जो तरीके से हमने उसको बढ़ाया है, may not be in future that model will work and may not be that is attractive for our next generation to come in. सबसे बड़ा problem है attract. Induct to next वाला है, because a succession process will go through phases. The first is attract. For all senior members, you are in business for at least 30-40 साल से है. Close your eyes and think. हम घर में हैं, डिनर टेबल पे है, और हमने बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर में मैंने बिजनेस में ग्रोथ की हुई है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस की अच्छी बातें कितनी की है घर में? विच वॉज द लास्ट टाइम जो अपने आपने घर में जाके बिजनेस की अच्छी बातें की है? व्हेन वॉज इट? 10 days बैक, 15 days बैक? वीकली होगी तो बहुत अच्छा है. सालों बाद, सालों पहले हमने बात क्या की है? कस्टमर परेशान कर रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे. हमने बात क्या की है? एम्प्लॉय को ज़्यादा पगार चाहिए, वो ब्लैकमेल कर रहा है, नहीं तो छोड़ के जाओगे बोलता है.
हमने बात क्या की है, सप्लायर टाइमली माल नहीं देता है, उसको पैसे एडवांस में चाहिए। हमने बात क्या की है, गवर्नमेंट ऑफिसर आके हरास कर रहा है। हमने बात क्या की है, लोकल ऑफिसर से टेंशन है। हमने बात क्या की है, क्वालिटी में मटेरियल पास नहीं हो रहा है, लोग बेकार है, हम काम ही नहीं कर सकते। नाउ थिंक फॉर अ मोमेंट, वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, और तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन क्या सुन रही है? वो बुद्धू है जिसको प्रॉब्लम में जंप करना है, कूदना है। इतने तो पागल नहीं है ना, तो वो कैसे आएंगे बिजनेस में? हाउ विल यू अट्रैक्ट देम? First thing, start talking good about a business. Within 3 months, you will find they will ask you, हम कर क्या रहे हैं भाई? हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं, वी आर गेटिंग अवार्ड्स। टॉक गुड थिंग्स अबाउट, क्योंकि अट्रैक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ना। मैकडोनल्ड का खाना हेल्दी नहीं है, लेकिन लेके जाते हैं ना, उनको भी मालूम है हेल्दी नहीं है, लेकिन खींच खींच के लेके जाते हैं ना। कोका कोला से कोई सेहत नहीं बनता है, पीते हैं ना। 10 मिनट डिलीवरी से कोई किसका होता नहीं है, लेकिन मंगाते हैं ना। मार्केटिंग करना पड़ता है, आपके बिजनेस का मार्केटिंग आपको करना पड़ेगा इफ यू वांट टू अट्रैक्ट द नेक्स्ट जनरेशन, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट। सेकंड इज another challenge I would say is that now there is a trend क्या है? फॉरेन में सीखना है। You go for undergraduate course in Europe or in US or in Singapore, some place like this. वहाँ का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का चाल ढाल अलग है, वहाँ का बिजनेस करने का तरीका अलग है, एवरीथिंग इज अलग, एंड सीखने का तरीका अलग है। इन दोज क्लासेस और इन पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस इन इंडिया ऑल्सो, यू आर ट्रेन टू आस्क क्वेश्चंस। आपको बोला जाता है ये पढ़ो, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आएंगे, आप सोच के इसका आंसर दे दो। सो दैट ट्रेन टू आस्क, एंड इफ यू हैव एनी, वी हैव क्लास फॉर मॉडरेशन वेयर यू आर सपोज टू आस्क क्वेश्चन, तो द फैसिलिटेटर और द टीचर कैन मॉडरेट इट। आर वी रेडी टू गेट इनटू दैट रोल? मोस्ट ऑफ अस, हम आंसर देने के लिए रेडी नहीं, शायद हमारे पास आंसर ही नहीं है, क्योंकि हमने भी कभी सोचा नहीं है। दैट इज अनदर चैलेंज। एंड देन व्हेन दे कम बैक, दे से ये तो लाला का धंधा है भाई, हम मेरे से नहीं होगा। आप जो गद्दी पे बैठे हो और आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, मेरे से नहीं होगा। मैंने तो वहाँ देखा है, वो ऐसे काउंटर पे होगा, 50 दुकान चलते हैं, पैसे आता है, एमआईएस आता है, रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट देखते, ग्रोथ होता है, शेयर मार्केट में लिस्टिंग होता है, वैल्यूएशन बढ़ता है। आप बोलते हो किस चीज़ की बात कर रहा है भाई? वो बोलते हैं आप कहाँ बैठे हो भाई? सो दिस इज अनदर चैलेंज। We have to sell our business and we have to also show them that there's a future in this business. Today, people are not getting attracted in manufacturing jobs because they feel that it's a dirty job. Today, the problem with this generation is that they feel that mobile पे Google को पूछो या चैट जीपीटी को पूछो, इन्फॉर्मेशन आया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। उसको करना चाहिए ये उनको मालूम ही नहीं है। गवर्नमेंट आधार कार्ड का नाम चेंज करने के लिए, फोटो चेंज करने के लिए आधार सेंटर पे जाना पड़ता है। इंफॉर्मेशन गूगल देता है, पर गूगल जाके नहीं करता है। स्विमिंग करने के लिए कूदना पड़ता है, गूगल का ऑनलाइन क्लास करके स्विमिंग नहीं सीखा जा सकता, बराबर है? तो ये उनको समझाना पड़ेगा। उनके पास टेक्नोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग है, के पास टेक्नोलॉजी से क्या इन्फ्लुएंसेस लेना है वो अंडरस्टैंडिंग है। उनके पास नेटवर्क नहीं है, उनके पास रिलेशनशिप बिल्डिंग की कैपेबिलिटी नहीं है जो आपके पास है। जो उनके पास अच्छा है, जो आपके पास अच्छा है, ये दोनों को मिला है तो और अच्छा हो सकता है क्या? वो अच्छा हो सकता है, तो वी फोकस ऑन दैट रादर देन कर्सिंग ईच अदर कि आपको समझता नहीं है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू नॉट लीड यू टू एनीवेयर, इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अस। अनदर थिंग इज अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ इंटरेस्ट। उनको अच्छा क्या लगता है, स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। टुडे टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू in lot many ways in becoming more efficient business.
इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन सप्लाई चेन, इन ऑर्डर प्रोसेसिंग, बैकएंड के ऑपरेशन है, हम बदलना नहीं चाहते। हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि मेरे जैसा अच्छा धंधा कोई चला सकता नहीं, और मैंने जो किया वही राइट है, इससे कोई अच्छा हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे ही चलेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। अनलेस वी डोंट चेंज, थिंग्स विल नॉट चेंज। अंडरस्टैंड उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको अगर एआई अच्छा आता है, उसको अगर टेक्नोलॉजी अच्छा आता है, हाउ इट कैन कॉम्प्लीमेंट टू माई बिजनेस। मैं ऑनलाइन प्रोसेस शिफ्ट कर सकता हूँ जिसके मेरे पास कॉस्ट कम हो सकती है और मेरा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकता है। क्रिएट बिजनेस विजन एंड पर्पस। हमको साथ में काम करके करना क्या है भाई। आज हम 50 करोड़ पे बैठे हैं। कैन माई बिजनेस, ही सेड दैट 1000 करोड़ इज गोइंग टू 2500 करोड़। हाउ मेनी ऑफ अस हैव दैट काइंड ऑफ विजन, एटलीस्ट लाइन ऑफ साइट, कि मैं 50 करोड़ पे हो, 250 करोड़ हो सकता है, 500 करोड़ हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, क्या करना है, कौन से वर्टिकल में जाना है, क्या कम कर सकते, क्या ज्यादा कर सकते हैं। ये सोच लाने के लिए यू विल हैव टू क्रिएट विजन एंड पर्पस। क्यों करना है और क्या करना है। अलाइन देयर रोल्स। उसको अगर मैं मशीन चलाने के लिए बैठूं तो वो 30 साल पुराना काम हो गया, और आज मशीन भी ऑटोमेटिक आ रही है, आपको उस पर आदमी नहीं लगता है, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से फीड मशीन को देते हो। वर्ल्ड हैज चेंज्ड। आज लेथ मशीन का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। जो 50 साल पहले लेथ था और आज का लेथ है, आज का लेथ मशीन से मशीन इंस्ट्रक्शन ले रहा है। अगर मैं उसको बोलूँ तो उधर जाके खड़ा रहे और देख, ही डज नॉट नो व्हाट टू सी। आई हैड अ क्लाइंट, वो बोलता है मेरा लड़का आलसी है, 8 बजे कंपनी चालू होता है, ये 10 बजे आता है। मैं उसको जाके बोलता हूँ देख, लेकिन वो जाता ही नहीं है शॉप फ्लोर पे। लड़का बोलता है सर मैंने 4 दिन 8 बजे आया, मैंने देखा वो वर्कर काम कर रहा है, मशीन काम कर रहा है, इसके आगे देखना क्या है, मेरे को कोई बता ही नहीं रहा है, तो मैं देखूं क्या। तो उससे अच्छा मैं 10 बजे तक घर सोऊं ना, ऐश तो कर लूं, काम तो करना है बाद में। अभी पिताजी बोल रहे दे आर सो बिजी, तो देखना क्या है। तो वी हैव टू अट्रैक्ट, सी देयर रोल, करियर ग्रोथ, क्या काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हैं क्या, अंडरस्टैंड इट। फैमिली बिजनेस में हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम पैसा अच्छा मैनेज करते हैं, हम स्टॉक अच्छा मैनेज करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करते हैं, हम कोई टेक्नोलॉजी अच्छा काम करते हैं। आर वी गेटिंग इनटू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, हमारा कस्टमर रिलेशनशिप है, उससे हम क्या एडिशनल कर सकते हैं। दीज आर ऑल थिंग्स टू आस्क एंड दे हैव टू पार्टिसिपेट इन दैट, देन ओनली दे विल गेट अट्रैक्टेड। व्हाट इज आवर 3-year प्लान। वी आर सो बिजी, हमको मालूम नहीं हम ये साल में क्या टारगेट अचीव करेंगे। 3 साल का क्या बात कर रहे हो, 5 साल का क्या बात कर रहे हो। मैंने तो 1 अप्रैल 2024 को बोला था 250 करोड़ करूंगा, आज तो दिख रहा है साला 50 करोड़ का ऑर्डर ही नहीं है। तो 3 साल का किसने सोचा है। बट एटलीस्ट ट्राई, दिस इज एन एक्सरसाइज ऑफ थिंकिंग, बिकॉज इट विल ब्रिंग अस टू सम न्यू विजन एंड न्यू एरियाज टू अंडरस्टैंड हम क्या कर सकते हैं। योर टारगेट में गो रॉन्ग, बट एटलीस्ट यू कैन मेक एन एफर्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फैमिली का रोल क्या रहेगा बिजनेस में, that is also something to understand. Are we going to be operator managers, are we going to be board of directors, are we going to be investors, what is it that we want to do. I have a client, he has 3 sons, all the 3 sons में all 3 of them studying in US, उसमें से तो 2 तो केमिस्ट और साइंटिस्ट बैकग्राउंड के, एंड एक को आना था वापस। एंड एट वन पॉइंट इन टाइम बिजनेस उसके स्किल के बाहर हो गया, बोला 70 करोड़ का धंधा हो गया, एंड मेरे को अगर लग रहा है कि मैं ऐसे ही ग्रो होऊंगा, आई विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू मैनेज, और मेरे को दिख नहीं रहा है कि बच्चे आएंगे। आई हैड नो ऑप्शन बट टू प्रोफेशनलाइज। सबसे महंगा आदमी मैंने कंपनी में कौन सा लिया, HR मैनेजर, जिसका सबसे बड़ा सैलरी था। हमारे बिजनेस में कहाँ है HR मैनेजर, वो तो है ही नहीं, लगता ही नहीं, क्योंकि वो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ कांटेक्ट भी आपका नहीं है तो आपके पास अच्छी टैलेंट कहां से आएगी। एंड देन ही सेड दैट आई हैव टू रन ऑन बिजनेस प्रैक्टिसेस, सिस्टम्स, प्रोसेसेस, जिससे मैं बिजनेस चलाऊं, तो ही मेरा बिजनेस बड़ा हो सकता है। फॉर्चुनेटली फॉर हिम ऑल 3 सन्स केम बैक, एंड नाउ दे आर टॉकिंग दैट नेक्स्ट 5 साल में वी विल क्लोज एट, नेक्स्ट 5 साल में 700-800 करोड़ पे जाएंगे, वी विल कम आउट विद एन IPO। बट देयर इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एज फैमिली मेंबर्स, हम बिजनेस में हमारा रोल क्या रहेगा,
एंड ऑल ऑफ देम एग्री हम कोई फंक्शनल रोल लीड नहीं करेंगे। मतलब क्या, हम सेल्स नहीं करेंगे, बेचेंगे नहीं, हम बनाएंगे नहीं, मतलब हम जाके फैक्ट्री में नहीं खड़े रहेंगे। वी विल हैव पीपल फॉर दैट। आवर वर्क विल बी इनोवेशन, आवर वर्क विल बी अंडरस्टैंडिंग द मार्केट, आवर वर्क विल बी वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट। और नए प्रोजेक्ट पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो माई मैंडेट इज दैट 3 साल के बाद में मेरे को वो प्रोजेक्ट छोड़ना है और हैंड ओवर करना है। नहीं तो मैं उसको पकड़ के रखूंगा, साइलोस क्रिएट हो जाएंगे, हमारे में झगड़े हो जाएंगे। What is family's role in the business? If that clarity is there, then only they will get attracted. And developing a shared vision, साथ रह के करना क्या है, because that is more important. हम साथ है दिखाने के लिए है कि काम करने के लिए, is something which is very important. और काम करने के लिए है तो हमारा contribution individual is extremely important. अगर वो नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगा। And that's why you need to have a shared vision. Then you get into induction. But अगर अट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इंडक्ट बंदा होगा ही नहीं। और इंडक्शन अगेन बाय द वे इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया इन फैमिली बिजनेस। व्हाई? बिकॉज द सीनियर जनरेशन इज मोर इंक्लाइंड टू ऑपरेट। उनको काम करने में मजा आता है, उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मजा आता है, उनको फायर फाइटिंग करने में मजा आता है। उनको आप एक रूम में बिठाओ और बोलो आपके पास कोई आएगा नहीं पूरे दिन में, आपको सोचना है। सोचना क्या है? वी डोंट नो। सोचना कैसे है? वी डोंट नो। सोचना मतलब क्या करना है? वी डोंट नो। आपकी कंपनी के लिए अगर कोई सोचने वाला ही नहीं होगा तो आपके कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? जो दुनिया का रहेगा वही रहेगा। वो सोच आपकी आती है तो ही बिजनेस में फर्क पड़ेगा ना। जो आपके बिजनेस में जब चालू किया तभी सोच थी, अभी वो सोच है क्या? If we become too much of operator, then we are busy in doing managing day to day. And हमको लगता है जैसे मैंने सीखा है वैसे मेरी नेक्स्ट पीढ़ी सीख लेगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसने कभी फिएट या एम्बेसडर चलाई छोड़ो देखी भी नहीं है। आपने चलाई है, रिपेयर की हुई है, सेकंड हैंड बाय की हुई है, उसमें मजे भी लिए हुए हैं। मेरी नीस है, उसको हमने एक बार फिएट, मेरे भाई ने पुरानी वाली फिएट ली थी, वो उसने दरवाजा खोला और बोलते ये क्या गाड़ी है, इसमें एसी नहीं होता? ऐसे थोड़ी गाड़ी होती है विदाउट एसी के। उसने चीज जो देखी ही नहीं है, समझी ही नहीं है, आप उसको बोल रहे हो समझ भाई, उसके तरीके से समझाना पड़ेगा ना। सो अट्रैक्ट, इंडक्ट इज टू ओरिएंट अबाउट बिजनेस। हमारा बिजनेस है क्या, कर क्या रहे हम, इसमें से हमको क्या मिल रहा है, क्यों कर रहे हैं, कैसे हम इसको बड़ा करेंगे। इज समथिंग विच वी नीड टू रियली लुक एट एंड ओरिएंट हिम। आज तक क्या अच्छा हुआ है हमारे लिए जिससे हमको सक्सेस मिला है? दिस इज समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, आप उसको नीचे से ऊपर लाओगे या ऊपर प्रोजेक्ट दोगे और उसको समझ में आएगा ये काम करोगे? वी डोंट नो। हम सबसे पहला क्या करते हैं, तू मेरा लड़का है, तेरा कार्ड छपा के देता हूँ, तू डायरेक्टर है, ये मेरे बाजू का केबिन तेरा है या मेरे बाजू का टेबल मेरा है, तेरा है। तो गड़बड़ क्या हो गया? पहले दिन से ऊपर बैठा दिया, अभी तू करेगा क्या को नहीं मालूम। लोग तुमको सलाम, सेठ का बेटा है, जाने के बाद में करते अरे यार इसको तो कुछ आता नहीं, इससे क्यों काम करना है। ठीक है, झेलना पड़ता है। Is it going to help your business? Are you creating capable people in the family to manage business? If the answer is no, you have to rethink. इसको समझना क्या ही चाहिए। एंड इट इज़ नॉट समथिंग कि आप उसको जिंदगी भर नीचे काम करवाते रहो। यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेशन दैट ही विल गो इनटू। कभी बेचने जाए, कभी टीम मैनेज करने जाए, प्रोजेक्ट मैनेज करे, आगे बढ़ के मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेज करे, तो ही उसको वो स्केल आएगा, समझ आएगी। वो नहीं आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो इंडक्शन प्रोसेस में ही विल गो हेवायर। वो बिठाओ उसको, वो भी बोलो तुमको बोलना नहीं, ऑब्जर्व क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और हम मीटिंग के बाद में डिस्कस करेंगे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या था, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था, क्यों चीज तुमको कोई ऑब्जेक्शन लगा, डिस्कस इट, देन दे विल स्टार्ट फीलिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज extremely important. Life is not searching on Google and end of it.
When your customer said that your product is lousy, only your customer can say. Nobody else can say. और अगर वो फेस करना है तो उसको जाके खड़ा रह के उसको अगर फेस करना है तो उसको ही जाना पड़ेगा. और तभी जो फीलिंग है वो फीलिंग से पीछे आके जो रिपेयर करना है, you have to do it. वो hands on experience is important because tomorrow if somebody else tells him that this is something which has happened, उसका एम्प्लॉय बोलता है he should know what are the ground realities. ये हो सकता है कि शायद बंदा मेरे को टोपी तो नहीं पहना रहा है. डेवलप अ होलिस्टिक ओवरव्यू. क्या करने वाले, कैसे करने वाले, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट काइंड ऑफ टारगेट्स आर वी लुकिंग एट. सीखना क्या है उसको मशीन चलाना सीखना है, उसको टीम मैनेज करना सीखना है, उसको टैली चलाना सीखना है, कि उसको फाइनेंशियल नंबर्स रीड करना सीखना है. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ माई इंजीनियरिंग बेस्ड क्लाइंट्स फील दैट मेरा बच्चा भी इंजीनियर है, इसको पहले टैली सिखाओ. बोले उससे होगा क्या? नहीं, उसको अकाउंट बहुत अच्छा आ जाएगा. बोला 20,000 रुपए तो बहुत अच्छा अकाउंटेंट मिलेगा. वो निकलता है आउटपुट, उससे पढ़ने को सिखाओ ना उसको. टैली सीख के एंट्री सीखेगा क्या? You are asking him to do that job, but that job is not a value adding activity for you or your business. अगर परफॉर्मेंस उससे कुछ चाहिए तो वो सेट करो, डिस्कस करो. उसको अगर ड्रॉबैक आते उसको फीडबैक दो. फीडबैक इज अगेन समथिंग विच वी डोंट गिव, क्योंकि हमको लगता है हम बच्चों. एंड इफ पॉसिबल इन योर फैमिली, let your child not report to you, let him report to his uncle, क्योंकि पिताजी is already discounted. और वो डिस्काउंट होने के बाद में वो ऐसा होता है कि हाँ ठीक है यार, पिताजी को बोल देंगे, नहीं बोलेगा तो भी चलेगा. बट इफ यू आर रिपोर्टिंग टू योर प्रोफेशनल मैनेजर, इफ यू हैव वन, देयर इज सीरियसनेस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी डेवलपमेंट नीड क्या है, उसको क्या समझता है, क्या नहीं समझता है. बिजनेस बड़ा होता है, यू हैव टू रन ऑन सिस्टम्स, प्रोसेसेस. वो अगर नहीं चलाओगे, वो पीपल डिपेंडेंट करोगे, तो बिजनेस मैनेज करने के लिए तकलीफ हो जाएगी. और अगर आप नहीं रहोगे तो बिजनेस मैनेज करने के लिए और ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी. जॉइंटली वर्क टुगेदर, तो उसके स्किल डेवलप कर सको, तो आप उसको डिजायर पोजीशन में ऊपर लेके जा सको. It can be girl, it can be boy, anyone, but I think this is something which is important. Work together. This is a doubles match. This is a team match. आपको कब खेलना है और उसको कब खेलने देना है is something which you need to understand together. I had written long back and you can check it. It must be there on the LinkedIn article. Family business is a doubles match. Doubles match में you have to have a coordination. क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां वो बॉल है या वो शटल कॉक है, वो आप मारोगे कि वो मारेगा. दैट्स अ डिसीजन एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रस्ट. क्योंकि वो मिस हो गया तो पॉइंट आपके अगेंस्ट जाता है. सो इट्स अ टीम गेम, इट्स नेवर एन इंडिविजुअल गेम, इट्स अ डबल्स मैच दैट यू आर प्लेइंग. यू वर्क टुगेदर. बी अ गार्डनर, नॉट अ स्कल्प्टर. माली क्या करता है? पौधे लगाता है, पौधे बड़े होने में जो भी तकलीफ है, वो खामियां वो निकालता है और पौधों को बड़ा करता है. जो ज़्यादा बड़ा है उसको प्रून करता है तो अच्छा दिखे. स्कल्प्टर क्या करता है? पत्थर से मूर्ति बनाता है. गलत लग गया तो मूर्ति खराब हो जाती है. डिस्काउंट, इससे होगा नहीं. ये ऐसे ही है, रात को पार्टी करने जाता है, सुबह उठता नहीं है, फिर कंपनी में आता नहीं है, लेट आता है. Be a gardener, not a sculptor. We have to change. आपको अगर बाग अच्छी करनी है तो आपको गार्डनर बनना पड़ेगा. आप उसको स्कल्प्टर के रैंक में करोगे तो आपकी बाग नहीं खिलेगी. Give them exposure, do their own things, fail sometimes, supervise a team, प्रोजेक्ट हेड करो, डिपार्टमेंट हेड करो. प्रोजेक्ट स्क्रैच से ऊपर खड़ा करना इज अ कंप्लीट. एंड आई हैव सीन दिस इन मल्टीपल टाइम्स. उनको ब्रीफ दो, उनको बोलो इसमें लगने वाला क्या है, जाओ कंसल्टेंट से बात करो, निकालो. यू डू अ करेक्शन जॉब. उसको बजट्स दो, उसको एग्जीक्यूट करने की पावर दो, सुपरवाइज करने की पावर दो. दे लर्न. बजट मैनेज कैसा करना है, दे लर्न. लीड अ डिपार्टमेंट. डोंट गिव देम अ कार्ड एंड अ केबिन, because that is going to be the most I think
degradable induction that you can ever give. You have to make them understand what this business really means and how this business is going to grow multifold. Coach them. अगर गलत जा रहे हैं डिस्कस करो, यहाँ हमको टाइम देना है, हर 15 दिन बात करनी है, महीने में बात करनी है, वीकली बात करनी है, भाई देखा क्या हुआ, क्या तेरे को समझा, क्या नहीं समझा तो क्या हुआ. You can do it. Assign somebody else in your organization to do it. Assign a third party to do it, but do it. Be there. Google Map. Google Map सब करते हैं यूज. गलत रास्ता लिया तो वो क्या बोलता है, अल्टरनेट मैप दिखाता है ना, कि वो बोलता है रास्कल यू डोंट अंडरस्टैंड, यू फूल. फिर आप करोगे गूगल मैप यूज? यू आर अ निनकम्पू, बॉम्ब, डेड, डम, ऐसा नहीं बोलता है ना वो क्या बोलता है, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वाला अल्टरनेटिव कहता है, नो प्रॉब्लम, थर्ड वाला अल्टरनेटिव है. यू हैव टू बी अ गूगल मैप. If you say that you don't understand, you are a fool. Right from the childhood I have seen you don't understand anything. Are you making him opening up for learning? अगर वो नहीं होगा तो वो टिकेंगे नहीं आपके साथ. Let them manage the show. It is important. डिपार्टमेंट चलाने को दो, प्रोजेक्ट चलाने को दो. Let them have that feeling of doing it. You always have a right to correct them, but it has to be in a right way. Give them permission to dream. हम क्या बोलते हैं, this is typical in our Indian context is that भाई मेरे डैडी ने चालू किया था, हम भाइयों ने बड़ा किया, अभी इनको चलाना, बड़ा नहीं किया तो भी चलेगा. That is our first thing. या तुम बाहर जा रहे हो पढ़ने के लिए, धंधे में इतनी तकलीफ है, तुम उधर ही कुछ देख लेना. These are our typical sentences. What we are trying to do? हम क्या बोल रहे हैं कि तुमसे होगा नहीं. Why? होगा नहीं, fine. But अगर if you don't give them permission to dream, they will stop dreaming. And सबसे बड़ा प्रॉब्लम फैमिली बिजनेस में आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ, आपके 3 ब्रदर है, आप तीनों के लिए बिजनेस सस्टेन करने के लिए इजी था, बिजनेस में पैसा था, वो 3 घर चला सकता था. आप हर एक को अगर 2-2 बेटे हैं तो 6 नीचे वाले और 3 ऊपर वाले, आपके बिजनेस में इतनी ताकत है कि 9 घर चला सकता है. तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा तो प्रॉब्लम किसको होगा? सबसे पहले आपको होगा. आई एम फेसिंग दिस केसेस. 3 भाई है, नीचे 5 बच्चे हैं, और सबसे पहले बोला कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा क्योंकि जो सेक्टर में आप हो वहां ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम. तो आपके बिजनेस को लास्ट 5 साल पहले 3 घर चलाने पड़ते थे, अभी आपके बच्चों की शादी होगी, अभी उसको 7 घर चलाने पड़ रहे. बिजनेस में पैसा है नहीं, झगड़ा तो होगा ही, 8 घर चलाने पड़ रहे. हमको मालूम है ये, बट वी आर ब्लाइंड टू दिस पॉसिबिलिटी. क्योंकि मेरा अभी तक तो अच्छा चल रहा है ना भाइयों के साथ, आगे जाके क्या होगा? अरे होगा, ये पत्थर की लकीर है. तुम घर में कितना भी रामायण पढ़ो, होता महाभारत ही है. ये प्रॉब्लम है. कल्चरल एस्पिरेशन जिंदगी में आगे जाने की चाहत पैदा करो ना, वो नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे? एंड बी अ डबल्स प्लेयर, डोंट बी अ स्टार प्लेयर. मैंने किया, मैंने नहीं किया, हमने किया. क्या हम कर सकते हैं? साथ में चलेंगे, क्योंकि आपका टाइम भी लिमिटेड है, उसका टाइम भी लिमिटेड है. हम कितना भी उसको बताएंगे मैंने किया. आई हैव सीन अ क्लाइंट वेयर फॉर सम टाइम ही वाज सिटिंग इन द बॉस चेयर एंड बच्चे सामने बैठे थे. उनके भाई थे, वो अनफॉर्चुनेटली ही गॉट इल एंड ही कुड नॉट कम टू ऑफिस एंड ही वाज बेड रिडन. तो उसने क्या किया, बच्चों को इधर बैठा, वो सामने बैठने. तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया आपने, बच्चों को संभालने के लिए. नहीं नहीं, कंट्रोल तो मैं ही कर रहा हूं, सिर्फ मैंने सीट बदली की है. तो फिर फायदा क्या है? अगर आपको सीट से इतना प्यार है या कंट्रोल से इतना प्यार है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. एंड बिजनेस इज अगेन, आई एम टेलिंग यू, बिजनेस इज अगेन रीजनेबली गुड. 150-200 करोड़ का धंधा है. आप कब तक रहोगे तब तक. क्रिएट पार्टनर्स. बच्चों में पार्टनरशिप क्रिएट कैसी होगी?
Work together to know each other. I have already talked about this. Let them develop complementing skill. आपके बिजनेस को कोई अच्छा फाइनेंस वाला चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग वाला चाहिए, मार्केटिंग वाला चाहिए, बिजनेस संभालने वाला HR एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए. आपके फैमिली में ये अलग अलग स्किल डेवलप कर सकते हो क्या? सभी को इंजीनियर बनाओगे तो सब ऑपरेशंस में जाके झगड़ा ही करेंगे, क्योंकि सर को मालूम है मेरा इंजीनियरिंग अच्छा है कि मैंने IIT से किया है, तूने VIT से किया है, तूने VJTI से किया है, तो IIT अच्छा है कि VIT अच्छा है, वो झगड़ा ही करेंगे. What is it that my business is? Let them develop complementing skill. Define roles. काम क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो अगर आप नहीं करोगे तो चैलेंज आएगा ही आएगा. क्योंकि हर बंदा ओनर है, हर एक को लगता है मैं ही राइट हूँ, और हर एक जाके नीचे बता देगा कि ये करो वो करो, या खुद करने जाएगा. इससे बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, बिजनेस को स्ट्रेच आएगा. ट्रस्ट यू कैन बिल्ड ओनली थ्रू कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, which second generation or third generation onwards we start drifting apart and not talking to each other. हम एक दूसरे को अज्यूम करने लगते हैं, एक दूसरे को ग्रांटेड लेने लगते हैं, एंड देन हम एक दूसरे पे एलिगेशन करने लगते हैं कि इसने इसको बचाने के लिए फलाना फलाना किया था, which might not be the case. Create a platform where you can talk and build trust. क्रिएट अ शेयर्ड विजन. करना क्या है, साथ में काम करके. अगर साथ में काम करके झगड़ा ही करना है तो बेटर अच्छा है हम अलग अलग करें. झगड़ा तो नहीं होगा और काम भी बढ़ सकता है. शायद एक अनिल अंबानी हो और एक मुकेश अंबानी हो, लेकिन झगड़ा तो खत्म हो गया. अनिल अंबानी ये तो नहीं बोल सकता ना मेरा धंधा तूने खा लिया. बोला भी तो कौन सुनने वाला है, तेरे को भी तो चांस मिला था ना भाई. लर्न टू कम्युनिकेट. Another important thing in communication is कब, क्या, कैसे. We need to learn this skill. How to ask, what to ask, when to ask. Especially the next generation. क्योंकि we are friendly to next generation, they feel that we are friends. So in business context भी वो क्या बोलते हैं, पिताजी को कुछ समझता नहीं, चाचा बुद्धू है. अरे भाई तू जो कुर्सी पे बैठा है ना, वो कुर्सी उसके बुद्धू है, इसके लिए तो आई है. वो ज्यादा होशियार होता तो यहाँ रहता नहीं रहता मेरे को मालूम नहीं है. बट दे मेक दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड कब, क्या, कैसे. नीड टू रिस्पेक्ट. इफ रिस्पेक्ट इज अ वैल्यू ऑफ अ फैमिली, और वो रिस्पेक्ट हैज टू बी ऑल अक्रॉस. इफ ट्रांसपेरेंसी इज अ वैल्यू ऑफ अ फैमिली, इट हैज टू बी ऑल अक्रॉस. फिर मैं दूसरे से झूठ बोलूं तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है. दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बिल्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन. मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस पैसा आने के बाद में फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आ जाता है, इसके लिए तकलीफ आ जाती है. बिल्ड प्रूडेंट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन दैट विल हेल्प यू ग्रो. यू नीड टू हैव एनी ग्रोइंग बिजनेस. One thing which it requires as oxygen is cash. I don't mean cash मतलब physical cash, money in your account. अगर वो आपके पास नहीं है, आप कितनी भी चाह करो, ग्रोथ आपके पास आएगा नहीं. वो आपका हो दूसरे का हो तो आपके पास वो लीवरेज चाहिए रेस करने का. हमको लगता है इन्वेस्टर पैसे मतलब चेक फाड़ रहे फटाफट फटाफट दूसरे के लिए, मतलब मेरे लिए भी फाड़ेंगे तो तुम्हारे नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे. कोई चेक नहीं फाड़ता भाई. वो सब सुन लेता है और बोलता है हम सोच के बताएंगे, कोई बताता भी नहीं है. फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज मस्ट. आपको पैसा रेज करना है, आपको लोन लेना है, आपको खुद का पैसा बिजनेस में लगाना है, यू नीड टू हैव मनी. अगर वो नहीं है तो आपके ख्वाब ख्वाब रह जाएंगे, रियलिटी में आने की मुश्किल. दैट इज व्हाट इज द. एंड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड डेवलप पेशेंस, क्योंकि इजीली कुछ नहीं होता है. आपके फिक्स टाइमिंग वाले कितने हैं लोग. आप ट्राई करो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कन्विंस करने के लिए कि हम वील हैव फ्लेक्सी टाइम, कि 9 बजे 9 to 5 हमारा टाइमिंग है, तो लोग 9:30 बजे तक आएंगे तो चलेगा. एंड यू विल सी दैट इट विल टेक एनीवेयर बिटवीन 3 months to 1 year for them to agree. Somebody who is managing a 7,500 crore turnover company said, it took me 1 year to convince my earlier generation
कि मेरे को फ्लेक्सी टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे पास टैलेंट रिटेन करने के लिए दिस इज वन ऑफ द टूल आई कैन यूज, एंड इट टुक मी 1 year. इफ यू डोंट हैव पेशेंस, फैमिली बिजनेस इज नॉट फॉर यू. अभी के अभी, आज के आज कुछ होता नहीं है. इट इज वेरी एम्बिगुअस इन टर्म्स ऑफ डिसीजन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर मैं ये रोड पे चलना है तो ये इसकी तकलीफ है, और ये तकलीफ मेरे को साथ में लेके चलनी है. इससे समाधान आएगा, सुलझ जाएगा, बट इट विल टेक टाइम. एंड फाइनली, लेटिंग गो is the most difficult act. It is very easy for me standing here and telling you let go करना चाहिए, but it's the most difficult act. Move away from executive responsibilities. Decide an age, और आपका ऑफिस, आपका केबिन उठा के अलग जगह पे लेके जाओ जहां आपके पास कोई आएगा ही नहीं. You will find within 3 months the company work as it is. आपको ही लगता था मेरे सिवाय नहीं चल सकता है. मेरे क्लाइंट थे, वो ओनर्स थे, दे वर सिटिंग इन द मिडल, और पूरा फैक्ट्री बाजू में था, एंड वो ग्लास का केबिन था, सब दिख रहा था. एक दिन उन्होंने वो मिडल का उठा के नीचे एक कोने में ऑफिस लेके गए, वो भी कांच का बंद करके वुडन का किया, किसको मालूम ही नहीं है ये है कि नहीं है. फैक्ट्री ने ग्रो ज्यादा किया. And then they were surprised. और उनको कोई पूछने भी नहीं आया. Move away from executive responsibilities. Second, wealth management. Senior generation business ना छोड़ने का कारण, मेरा पैसा कहाँ से आएगा which will help me retain lifestyle. Because I am getting money from the business, and that is my source of income to retain my lifestyle. अगर मैं आज डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दूँ तो कल मेरे को बिजनेस से पैसा नहीं आएगा. यू नीड टू हैव वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, विच विल हेल्प यू हैव द अमाउंट दैट यू रिक्वायर टू रिटेन योर लाइफस्टाइल. वो नहीं होगा, यू विल नेवर लिव. एंड इन फाउंडर्स जनरली देयर इज अ टेंडेंसी नॉट टू लिव. मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स विल डाई इन देयर बूट्स. दिस इज अ फैक्ट, रियलिटी, बिकॉज फॉर देम द बिजनेस इज देयर चाइल्ड. बट स्टिल मेक wealth management a priority, because after certain age you will need consistent money, and if your business is going to run in cycles, and if you are going to leave executive responsibilities, then you will need money, and you need to have provision for that. Develop hobbies and social engagement. हमको धंधे के सिवा कुछ आता ही नहीं है. डे नाइट, देन व्हाट डू वी डू? वी हैव नो अदर ऑप्शन कि हम बोलते हैं ठीक है, वो एक छोटा सा केबिन है, उधर आके मैं बैठूंगा, एंड देन वी कॉल एवरीबडी इन दैट केबिन, एंड वी डिस्कस ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, एंड वी पोक अवर नोज इन एवरी ब्लडी डैम थिंग, एंड डेट देम नॉट वर्क, बिकॉज वी हैव इनक्विजिटिवनेस कि चल क्या रहा है, मेरे बिना कैसे चल सकता है, मेरे को कोई पूछने क्यों नहीं आता है. It is important. You have developed social engagement and hobbies. Otherwise, आप घर में बैठे रहोगे तो आपकी बीवी आपको घर से बाहर निकाल देगी. Write it down. अगर वो होगा, आप किधर एंगेज नहीं रहोगे तो वहां से आ जाएगा, यार अच्छे थे ऑफिस में, घर में मत बिठाओ इनको. Learn when to give inputs and when to not. Not necessarily हमें हर समय, बहुत सारा समय ऐसा रहता है कि लोगों को सुनने वाला चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए. हमारे में सुनने की क्षमता अगर नहीं है और हम हर समय ज्ञान ही देंगे तो लोग हमारे पास आएंगे ही नहीं. हैव गट्स टू से बाय. एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आओ, डे टू डे रनिंग में से बाहर आ जाओ. एंड फाइनली, स्टे कनेक्टेड. नाउ हाउ टू स्टे कनेक्टेड? इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर पोजिशन ऑफ विजडम. आपको ज्ञान है, वो से आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, प्रोवाइडेड दे आस्क, अदरवाइज कीप योर माउथ शट. लर्न न्यू स्किल्स. आई हैव सीन अ फैमिली वेयर द पर्सन हु हैज रिटायर्ड, ही हैज स्टार्टेड अ फंडिंग फॉर स्टार्टअप, और दैट हैज बिकम हॉबी, एंड दैट हैज बिकम अ बिगर बिजनेस देन द एग्जिस्टिंग बिजनेस. So he started talking to entrepreneurs, understanding, उसमें 1 करोड़ रुपया खर्च, ये करो, इन्वेस्ट करो, 5 करोड़, वो बिजनेस को बढ़ाओ.
and he's not sitting in that office. He is now managing multiple 20 businesses with 20 CEOs who are working on their business, and his wealth is growing. We never see that as an option. Keep your eyes open. जरूरत सबको होती है, समझने वाला कोई होता नहीं है. क्या आप वो समझने वाला बन सकते हो? Knowing when to be available. किसके लिए क्या कब अवेलेबल होना है? You have to know. Let others ask questions. Don't give all the answers without questions. Give ideas. Don't give ideas even after knowing the answers. आपको मालूम है फिर भी आइडिया मत दो. They also have to sometimes learn. Build a system's ability to grow. Create a system that will help them grow, not a system which make you influence them all the time to grow. Securing legacy calls for three things: having the humility of senior generation to lower dependence of the company on you, a plan for the future for which you are not part of. It is the greatest test greatness. If you can do this, there's nothing like it. Your role is changing. And this is where, again, I have written an article on this. You can go through this. Your role is changing. Your age is changing. From a provider, you have to become a provisioner. From a provisioner, you have to become a partner. From a partner, you have to become a patron. If you don't change, it is going to be challenging for your company. They say the right time to hand over is not when you are ready. The right time is when they are ready. If you hold on till the time that when you are ready, maybe the company will already have a lot of challenges by that time. Finally, two things that we need to remember. Keep entrepreneurship alive in the family business. Business has to grow. It can be same business, it can be different business, it can be multiple business, it can be different vertical. Risk taking is your ability as a family which has helped you make money. If you cut that, your innovation and entrepreneurship ability will go down, and that is definitely going to kill your business and your family. And second is work on family bonding. This is the most neglected area. You have to celebrate together, you have to enjoy together, you have to work together, you have to work on projects together, you have to manage activities together. Learn each other as a person, because without that, your partnership is going to have challenge. It is extremely important. Any guesses why I'm showing you this picture? There's a flaw in the picture. Can you think of it? ये पिक्चर में कुछ गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? क्या दिखा रहा है ये पिक्चर? Anybody? और ये लास्ट 25 साल में मैं स्लाइड में यूज कर रहा हूं. पिक्चर में दिख क्या रहा है? और are the shadows holding hand? This is what happens. The world sees this and we see this, and it is not going to last long. It is going to create a problem. Finally, it boils down to two things. For it, is it meaningful? Is it giving you happiness? If the answer to both these questions is yes, you won the game. Thank you. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.